Good morning, students. Welcome to my channel Fatafat Education, and today we will discuss the NCERT exercise questions for Chapter 2 Acid, Bases and Salts, Class 10th Science. Moving to first question, a solution turns red litmus blue. Its pH is likely to be 1, 4, 5 or 10. Now we know the substance which turns red litmus blue is to be basic and the pH which is basic in nature. तो जो pH होता है अगर वो बेसिक की बात करें तो वो अबव 7 होना चाहिए. अब जितने भी हमें ये 4 ऑप्शंस दिए हैं इसमें से सिर्फ 10 pH है वो हमारा मोर देन 7 है. तो इसीलिए अब हमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कौन सा सॉल्यूशन टर्न कर रहा है. तो वो जो सॉल्यूशन जो pH पेपर को रेड लिटमस ब्लू टर्न कर रहा है दैट इज 10. मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन, a solution reacts with crushed eggshells to give a gas that turns lime water milky. The solution contains NaCl, HCl, LiCl और KCl. अब हमें पता है एगशेल्स जो होते हैं वो हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के बनते हैं जो कि HCl के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करते हैं और यही जो गैस होती है वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न करती है और उसका इक्वेशन है CaCO3 plus 2HCl gives CaCl2 plus H2O plus CO2 गैस इज लिबरेटेड. जो हमारा फिर अब ये जो सॉल्यूशन है वो HCl का है. तो दिस इज कंफर्म्ड. मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. If we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount of HCl solution required to neutralize it will be 4 ml, 8 ml, 12 ml और 16 ml. अब आपने ऑब्जर्व किया कि जो 10 ml NaOH ले रहे हैं उसको 8 ml न्यूट्रलाइज कर रहा है HCl. अगर हम वही सेम सॉल्यूशन का 20 ml लेंगे तो कितना होगा. तो आप पहले 10:8 है फिर नेक्स्ट आपका वापस सेम ही रेशियो में हो जाएगा. तो 10 के लिए अगर 8 चाहिए तो उससे डबल 20 के लिए भी डबल अमाउंट चाहिए होगा HCl का. तो इसीलिए 2 times of 8 ml will be needed, that is 16 ml will be needed. So since 10 ml of NaOH requires 8 ml of HCl, therefore 20 ml of NaOH requires 16 ml of HCl. Therefore हमारा आंसर है 16 ml, that is D option. Next question, which one of the following types of medicine is used for treating indigestion? अब indigestion कब होता है? जब हमारे स्टमक में एक्सेस प्रोडक्शन हो जाता है एसिड का, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो मेडिसिन लेते हैं वो एंटी एसिड मेडिसिन होती हैं. तो इसीलिए जो हमारा आंसर करेक्ट है वो दैट इज ऑप्शन सी विच इज एंटी एसिड. मूविंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन dilute sulfuric acid reacts with zinc granules. तो अब इसकी इक्वेशन देखते हैं. वर्ड इक्वेशन, dilute sulfuric acid plus zinc gives zinc sulfate plus hydrogen gas. Moving to the balanced equation, H2SO4 aqueous plus Zn solid gives ZnSO4 aqueous plus H2 gas is evolved. The next part is dilute hydrochloric acid reacts with magnesium ribbon. Let's see the word equation first. Dilute hydrochloric acid plus magnesium gives magnesium chloride plus hydrogen gas. The balanced equation will be 2HCl aqueous plus Mg solid gives MgCl2 aqueous plus H2 gas is evolved. Moving to C part, dilute sulfuric acid reacts with aluminium powder. The word equation will be dilute sulfuric acid plus aluminium gives aluminium sulfate plus hydrogen gas. The balanced equation will be 3H2SO4 aqueous plus 2Al solid gives Al2SO4 whole thrice aqueous plus 3H2 gas is evolved. D part is dilute hydrochloric acid reacts with iron fillings. The word equation will be dilute hydrochloric acid plus iron gives ferrous chloride plus hydrogen gas. The balanced equation will be 6HCl aqueous plus 3Fe solid gives 3FeCl2 aqueous plus 3H2 gas is evolved. Moving to sixth question, compounds such as alcohols and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acid. Describe an activity to prove it. अब किसी भी चीज को एसिड होने के लिए हाइड्रोजन आयंस की प्रेजेंस होना जरूरी है. नॉट ओनली हाइड्रोजन बट हाइड्रोजन आयंस शुड बी प्रेजेंट. तो हम पहले एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं. क्या करेंगे, आप 2 आयरन नेल्स लीजिए, उसको एक रबर कॉर्क में फिट करके बीकर में रखिए, उसको 6 वोल्ट की बैटरी और एक बल्ब और स्विच से कनेक्ट करिए. अब उसके अंदर थोड़ा सा ग्लूकोज सॉल्यूशन पोर करिए और स्विच को ऑन करिए. लेट्स सी वेदर द बल्ब इज गेटिंग ग्लोइंग.
अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आपने ग्लूकोज या फिर अल्कोहल का सॉल्यूशन डाला है तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इसका ये मतलब है कि हमारे इसके अंदर आयंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है। अब हम एक चीज करेंगे, क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन रिमूव करके इसमें HCl का सॉल्यूशन लेंगे। अब फिर वापस से हम स्विच को ऑन करेंगे। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इस केस में बल्ब ग्लो कर रहा है। अब बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, विच मीन्स कि हमारे जो सॉल्यूशंस हैं अल्कोहल के और ग्लूकोज के, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि उनको हम एसिड के फॉर्म में कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनके अंदर हाइड्रोजन आयंस नहीं रहते हैं। मूविंग टू 7th क्वेश्चन, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। अब डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी आयंस नहीं होते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन रेन वाटर के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो उसको एसिडिक बनाते हैं। जैसे कि क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एयर से रेन वाटर के साथ मिक्स होकर कार्बोनिक एसिड बनाता है। जो ये कार्बोनिक एसिड है वो डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयंस और कार्बोनेट आयंस बनाता है, जिसके वजह से जो हमारा रेन वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर नहीं कर सकता है क्योंकि उसमें कोई भी फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। Another question is, why do acids not show acidic behavior in the absence of water? अब कोई भी सब्सटेंस को एसिडिक बिहेवियर दिखाने के लिए हाइड्रोजन आयंस की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। तो जब एसिड को हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तभी तो वो आयंस में डिसोसिएट होता है और तभी हमें हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं। इसीलिए हमें जो है एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए वाटर का होना जरूरी है। तो इसीलिए जब वाटर नहीं होगा तो कोई भी एसिड एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा। मूविंग टू 9th क्वेश्चन, 5 solutions A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Arrange the pH in increasing order of hydrogen ion concentration. Also which solution is neutral, strongly alkaline, strongly acidic, weakly acidic and weakly alkaline. अब हमें पता है जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो पीएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहले हम ऑर्डर देखते हैं कैसे है। तो हमारा ऑर्डर जो रहेगा वो हाईएस्ट पीएच से लोएस्ट पीएच तक रहेगा फॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो pH 11, देन pH 9, pH 7, pH 4 एंड pH 1। तो ऑर्डर ऑफ सॉल्यूशंस ये आया C, E, A, D, B। Therefore pH 11 is strongly alkaline, pH 9 weakly alkaline है, pH 7 neutral है as we all know, pH 4 is weakly acidic and pH 1 is strongly acidic। क्योंकि हमें पता है pH मीटर में less than 7 is acidic nature, more than 7 is basic nature, और 14 वाला जो होता है like from 11, 12, 13, 14 that is strongly alkaline, 7 to 9 is weakly alkaline, then 7 to 4 is weakly acidic and 4 to 1 is strongly acidic। Moving to 10th question, equal lengths of magnesium ribbons are taken in test tubes A and B. Hydrochloric acid is added to test tube A while acetic acid is added to test tube B. Amount and concentration taken for both the acids are same. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? अब हमें पता है जो HCl है वो एसिटिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मींस HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड एक वीकर एसिड है। अब क्या होता है, फिजिंग जो होती है मींस एफरवेसेंस जो आती है, हमारी फिजिंग बबलिंग जो हुई वो हाइड्रोजन आयन की प्रोडक्शन के वजह से होती है, जो कि एसिड के रिएक्शन और मैग्नीशियम रिबन के रिएक्शन से आएगी। अब HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होगी, जिसकी वजह से टेस्ट ट्यूब ए जो है उसकी क्वांटिटी फिजिंग की ज्यादा रहेगी टेस्ट ट्यूब ए में एज कंपेयर टू टेस्ट ट्यूब बी। देयरफॉर टेस्ट ट्यूब ए विल हैव फिजिंग मोर vigorously as compared to test tube B. Moving to 11th question, fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. अब मिल्क जो है हमारा वो कर्ड में चेंज तब होता है जब उसके अंदर लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है। अब लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होने की वजह से जो पीएच है वो 6 से थोड़ा लेस हो जाएगा, तो इसीलिए जो हमारे कर्ड का पीएच है वो एज कंपेयर टू मिल्क के पीएच से लेस देन 6 होगा। Moving to question 12, a milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? Let's see the answer.
अब क्यों वो चेंज कर रहा है? बिकॉज जो फ्रेश मिल्क है उसका जैसे अगर 6 है pH, तो उसको अगर वो 6 pH रहेगा तो वो जल्दी से हमारा कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। तो वो इसीलिए 6 से स्लाइटली अल्कलाइन, उसको लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन को स्लो करने के लिए उसको स्लाइटली अल्कलाइन कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बी इज व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड? जब हम कर्ड फॉर्मेशन करेंगे तो जो पहले लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा वो इसको पहले न्यूट्रलाइज करेगा इस पीएच को। जब हमने स्ट्रांगली अल्कलाइन पीएच किया है तो उसको जो है वो कन्वर्ट करेगा, थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करेगा, और उसके बाद उसका पीएच और रिड्यूस होके कर्ड फॉर्म हो जाएगा ताकि और ज्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। मूविंग टू क्वेश्चन 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। अब क्या होता है, जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो हमारा क्या कहते हैं, हेमीहाइड्रेट है। अगर जरा सा भी मॉइस्चर या वाटर आ जाएगा तो उसका रिएक्शन होगा वाटर के साथ और डाइहाइड्रेट फॉर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो यूजलेस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हाइड्रेशन। तो इसीलिए हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करना चाहिए और उसको मॉइस्चर और एयर से बचा के रखना चाहिए। मूविंग टू क्वेश्चन 14, व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? गिव 2 एग्जांपल्स। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तब होता है जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट प्रोडक्ट बनाता है और वाटर बनाता है। इस तरीके के रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। जब हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो NaCl जो है वो सॉल्ट बन रहा है और वाटर आ रहा है, तो दिस इज टाइप ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब उसके साथ H2CO3 के साथ कंबाइन कर रहा है तो हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट हो रहा है और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या है, एक सॉल्ट है और वो एक एसिड और बेस से फॉर्म हो रहा है। तो हमारा जो वो है कार्बोनिक एसिड है दैट इज H2CO3, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो रहा है और मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। तो दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। मूविंग टू क्वेश्चन 15, गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज कर सकते हैं उसको। कोई जो हमारे कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिएक्शंस होते हैं, उसमें वॉशिंग सोडा को हम एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं। और उसको डोमेस्टिकली जो है एक वाटर सॉफ्टनर की तरह कभी यूज कर सकते हैं। जब आप क्लोथ्स वॉश करते हैं तो हार्ड वाटर होता है, तो उसके वजह से सोप इफेक्ट बहुत, डिटर्जेंट इफेक्ट बहुत कम हो पाता है। तो अगर आप वॉशिंग सोडा थोड़ा सा वाटर में डाल देंगे तो अच्छे से जो फोम फॉर्मेशन होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी और हमारा जो वाटर है वो एज अ हार्ड वाटर की जगह सॉफ्ट वाटर बन जाएगा। तो दैट इज वाई जो वॉशिंग सोडा है एक वाटर सॉफ्टनर की तरह भी काम करता है। अनदर क्वेश्चन इज 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। तो अब देखते हैं बेकिंग सोडा की क्या इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, सॉइल के अंदर एसिडिटी टेस्ट करने के लिए भी देखते हैं। तो जब बेकिंग सोडा हम गार्डन के सॉइल में ऐड करते हैं तो बबल्स फॉर्म होते हैं। उस बबल से ये पता चलता है कि वो या तो बहुत ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं सॉइल का एसिडिटी टेस्ट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ बेकिंग सोडा। ऑल्सो हम बेकिंग सोडा से जो डेड बग्स बॉडीज होता है उसके ऊपर, कार पे हमारे मेटलिक बॉडी होती है कार की, उसके ऊपर जो डेड बग बॉडीज हो जाती हैं या इंसेक्ट का कुछ है तो उनको आराम से रिमूव कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं विदाउट द रिमूवल ऑफ कलर ऑफ द कार। तो इसीलिए जो ये बेकिंग सोडा है, मतलब हमें स्क्रब नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मली वो जो बेकिंग सोडा से थोड़ा सा वॉश करेंगे तो आसानी से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, डेड बग बॉडीज हैं, वो इजीली रिमूव हो जाएंगी कार से। तो these are the main important uses of washing soda and baking soda. Students, I hope आपको मेरे सॉल्यूशंस अच्छे लगे हों। फॉर फर्दर डाउट्स आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन द गिवन जीमेल ID दैट इज fatafat@gmail.com। आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो और आगे आप कौन से वीडियो लेक्चर्स देखना पसंद करोगे आप हमें वो भी बता सकते हो। प्लीज लाइक माई चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।